تیسری عالمی جنگ کی گھنٹیاں بج چکی ہیں۔ انسان ختم ہونے والا ہے۔ کیا پرل ہاربر ہو چکا کہ جس کے بعد ایٹم بم گرے گا؟ یوکرینی حملے کے بعد ایمرجنسی کیوں لگ گئی؟ انڈیا نے بھی کیا اسی کشتی میں بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اور روس کے ساتھ امریکہ کو واضح پیغام کہ ختم نہیں ہوئے ہیں۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یوکرین سے تقریباً 4,500 کلومیٹر دور جا کر یوکرین تاریخ کا وہ حملہ کرے گا کہ جس کے بعد پوری دنیا کے 7 ارب لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈل چکی ہیں۔ ہر طرف سے یہ بازگشت آنا شروع ہو چکی ہے کہ یہ دنیا کی تاریخ کا دوسرا پرل ہاربر ہو چکا ہے۔ پرل ہاربر کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ جاپان کا وہ حملہ کہ جو پرل ہاربر پورٹ پر کیا گیا تھا اور جس کے بعد امریکہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے گا، انسان کی تاریخ کا وہ خطرناک ترین دن کہ جس کے بعد تاریخ تبدیل ہو چکی اور لوگ اس ایٹم بم نامی دجال سے ہر وقت ڈرنا شروع ہو گئے۔ تو اس کے بعد بالکل جب یہ 4,500 کلومیٹر دور جا کر بیلایا کے مقام پر جب یہ حملہ کیا گیا تو اس وقت سب لوگ یہ واضح طور پر کہہ رہے تھے کہ آج کی رات شاید یہ ختم رات ہو۔ یہاں تک کہ انڈین میڈیا کے چند اینکروں نے اور کچھ سوشل میڈیا پر لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ جناب والا ہو یہ گیا ہے کہ روس نے پیوتن نے یہ حکم دے دیا ہے کہ اب یوکرین کو صفائے ہستی سے مٹا دیا جائے۔ کیا واقعی میں دنیا پر یہ حملہ ہونے والا ہے؟ اور یوکرین نے یہ پرل ہاربر جیسا واقعہ آخر کس طریقے سے کیا؟ یہ ایک سنسنی خیز تاریخ ہے کہ جو آپ کے لیے یقینی طور پر سننا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا۔ اور کیا واقعی میں تیسری عالمی جنگ ہو رہی ہے کہ جس کے بعد دنیا نقشے سے اس کائنات سے ہی ختم ہو جائے گی، انسانیت کا وجود ختم ہو جائے گا یا پھر انسان کا وجود ختم ہو جائے گا؟ آج کے پروگرام میں مکمل گفتگو اسی پر ہوگی، لیکن ہر بار کی طرح آپ سے درخواست ضرور کرتا ہوں کہ چینل سبسکرائب ضرور کیجئے، ضرور کیجئے، ضرور کیجئے۔ ڈریے مت، آپ پر ایٹم بم نہیں گرے گا۔ آئیے اپنے گفتگو کا سلسلے کا آغاز کرتے ہیں اپنے پروردگار کے شکر سے کہ جس نے ہمیں یہ تمام نعمتیں دی، اور ہم وہ انسان ہیں کہ جو اس نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے ان نعمتوں کو ہمیشہ تباہ کرنے کی طرف لگے رہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نعمتیں اور وہ رحمتیں جو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے دی ہے، اور اسی لیے وہ بار بار ذکر کرتا ہے کہ تمام انسانوں کے لیے، ہم اسے تباہ کرنے پر لگے ہیں، یہاں کے چاہے ان کے مذاہب کچھ بھی ہوں، مگر یہ دنیا ظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے دی ہے۔ اب ہوا کیا اور کس طریقے سے ہوا؟ وہ جنگ کہ جس کا آغاز سن 2022 میں ہوا۔ اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان کی سیاست سے واقف ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہی تاریخی دن ہے کہ جس دن اس وقت کے وزیر اعظم اور تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان ایک دورے پر روس جاتے ہیں اور وہاں ان کی پیوتن سے ملاقات ہوتی ہے، اور اسی دن جنگ کا آغاز ہوتا ہے، اسی جنگ کا آغاز کہ جس کا آج اختتام انسانیت کے خاتمے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یعنی روس اور یوکرین کی جنگ۔ روس اور یوکرین کی جنگ نے جہاں پر دنیا میں تبدیلیاں رونما کی، وہیں پاکستان کے اندر بھی تبدیلی رونما کی تھی، اور یہ بات آنا شروع ہوئی تھی کہ آخر عمران خان نے روس کا دورہ کیوں کیا؟ اور یہی وہ کنٹروورسیاں تھیں، یہی نا اتفاقیاں تھیں کہ جو آگے چل کر بڑی۔ خیر، نقطہ اس وقت کیا ہے؟ نقطہ یہ ہے کہ جب یہ جنگ کا آغاز ہوا تو سب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ چند حملوں تک بات رک جائے گی اور جنگ ختم ہو جائے گی، لیکن یہ جنگ طول پکڑ دی گئی۔ نیٹو سمیت امریکہ نے اور جو بائیڈن انتظامیہ نے بھرپور مدد کی، یوکرین کی ہر سطح پر مدد کی، اسلحہ، پیسہ، یہاں تک کہ HR یعنی انسانوں کی طور پر لوگ بھیجے گئے، اور یہ جنگ بڑھتی گئی، بڑھتی گئی، بڑھتی گئی۔ امریکن انتظامیہ تبدیل ہوتی ہے، ٹرمپ آتے ہیں، یہ نوید ہوتی ہے کہ شاید یہ ملاقات بہتر ہو سکے،
और यूक्रेन के सदर की जिस तरीके से ट्रम्प बदतमीजी के साथ बेइज्जती करते हैं, उसके बाद ये मामला समझाता है कि अब यूक्रेन से तमाम लोग हाथ खींच लेंगे, यूक्रेन जंग हार चुका होगा और फिर रूस इक़्तिदार में होगा। अमेरिका में भी अक्सरियत ये बात समझती थी कि जंग यूक्रेन हार जाएगा, लेकिन यूक्रेन कुछ और सोचकर बैठा था। आपको याद होगा कि जब कभी भी जंगें तूल पकड़ती हैं और जब खुफिया इदारे काम करना शुरू करते हैं तो वो हमेशा एक एक साल, दो दो साल, चार चार साल और पांच पांच साल की मंसूबाबंदी करते हैं और उस मंसूबाबंदी के तहत वो फिर अपने टारगेट्स को अचीव करते हैं। आपको याद होगा कि इजराइल ने हिजबुल्लाह में पेजर अटैक किए थे। उसके लिए उन्होंने 2 साल का वक्त लिया कि पहले पेजर बनाने वाली कंपनी से राब्ता हुआ, एक जाली कंपनी बनाई गई, फिर जाली पेजरों के अंदर बाकायदा बम फिट किए गए, वो तमाम के तमाम हिजबुल्लाह के लोगों तक पहुंचाए गए। हिजबुल्लाह के लोग समझते थे कि पेजर सही है, उन्होंने 2, 4, 6 महीने बिल्कुल सही इस्तेमाल किए और फिर जैसे ही जंग तूल पकड़ती है वो बम सारे पेजर्स ब्लास्ट हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से यूक्रेनी सदर और उनके खुफिया इदारे, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर ISI काम करता है, जिस तरीके से इंडिया के अंदर रॉ काम करता है, जिस तरीके से इजराइल के अंदर मोसाद काम करता है, बिल्कुल इसी तरीके से यूक्रेन का एक खुफिया इदारा है जिसे SBU कहा जाता है। वो SBU ने एक हिकमत अमली तय की और इसका नाम रखा है स्पाइडर वेब, यानी कि मकड़ी का जाल। अब बिल्कुल ये मकड़ी के जाल की तरह एक लंबी प्लानिंग थी। लंबी प्लानिंग ये थी कि प्लान का हिस्सा ये था कि जाहिर सी बात है अगर हम मिसाइल मारते हैं तो रूस का सिस्टम इतना ताकतवर है कि वो मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर देता है, मिसाइल जाने नहीं देता ज्यादा दूर तक, और रूस उनके यूक्रेन के 20% हिस्से पर काबिज हो चुका है। दूसरी तरफ से अमेरिका, ट्रम्प इंतजामिया बार बार ये कहती है कि तुम जंग हार गए हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कमजोर शख्स भी अगर बेहतर प्लानिंग करे, एक कमजोर रियासत का सरबराह भी अगर बेहतर प्लानिंग करे तो अपने मुल्क को कहां से कहां ले आ सकता है। वो एक आज का लीडर 1-2 दिन की बात नहीं सोचता। ज़ेलेंस्की पर लाख एतराज हो सकता है, यूक्रेन के सदर पर लोग उसे कॉमेडियन कहते हैं, लोग उसे मस्खरा कहते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इस बार उसने साबित किया कि वो एक बहुत बड़ी प्लानिंग कर सकता है और उसने प्लानिंग की। उसने 1 साल 6 महीने 9 दिन तक एक ऑपरेशन किया। 1 साल 6 महीने 9 दिन तक उसने सबसे पहले कहा कि हमें रूस के अंदर तक घुसकर उनकी सबसे बड़ी ताकत उनके हवाई जहाज हैं, उन जहाजों को नुकसान पहुंचाना चाहिए। सोचा कैसे पहुंचाएं, अगर हमारी ताकत नहीं है कि हमारे मिसाइल यहां से वहां चले जाएं, तो उन्होंने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, लोग भेजते हैं, लोग जाकर वहां उन मिसाइलों से टकरा जाए, उन खुदकुश हमले कर दें, लेकिन यह भी मुमकिन नहीं था। फिर एक प्लान होता है, 150 के करीब ड्रोन्स, छोटे छोटे ड्रोन्स खुफिया रास्ते के जरिए पहुंचाए जाते हैं बाकायदा अंदर तक, रूस के अंदर तक, जिसमें 1 साल 5 महीने लगते हैं। कितनी दूर तक? यानी कि यूक्रेन से 4,500 किलोमीटर दूर तक, और वो 2 अहम जगह यानी कि मुर्मांस्क और दूसरी जगह जो है आर्कित्स्क, उसमें एक जगह बेलाया और दूसरी जगह ओलिनिया, 4,500 किलोमीटर दूर अंदर पहुंचाए जाते हैं। और फिर एक वक्त में सारे ड्रोन एक साथ उड़ना शुरू होते हैं। 150 लोग, 150 अलग अलग को एक ही वक्त में घड़ी मिलाकर 150 लोग जो वहीं मौजूद होते हैं, वो 150 लोग उन्हें उठाते हैं अलग अलग और अटैक कर देते हैं वहां पर। कहा जाता है कि इससे बड़ा अटैक आज तक रूस पर नहीं हुआ कि उसके 40 जहाजों को नुकसान पहुंचने का दावा करती है यूक्रेन। उसके बाद एक आग सी लग जाती है और कहा जाता है कि रात को, यानी कि 1 और 2 जून की शब को, यह बात कही जाती है कि आज तारीख में सबसे बड़ा हमला होगा, आज एटॉमिक वॉर छिड़ सकती है और आज प्यूटन एटमी बम का धमाका यूक्रेन पर कर सकता है। और क्योंकि यूक्रेन
नेटो का मेंबर बनने का ख्वाहिशमंद था और नेटो इसकी मुकम्मल सपोर्ट कर रहा था, तो यूरोप के ममालिक और अमेरिका पर खतरे की घंटियां बजना शुरू हो जाती है। रात गए पूरे नेटो के ममालिक में इमरजेंसी का निफाज कर दिया जाता है और इस बात का फैसला किया जाता है कि हमला किसी भी वक्त किसी भी घड़ी हो सकता है। और यह हमला सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल्स का नहीं होगा, ये सुपरसोनिक मिसाइल्स का नहीं होगा, ये आवाज की रफ्तार से 10 गुना चलने वाले मिसाइलों की गूंज नहीं होगी, बल्कि उसके साथ हो सकता है कि एटॉमिक वार भी हो। क्योंकि लोग ये तबसरा करना शुरू कर देते हैं कि ये पर्ल हार्बर हुआ है। जब जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया था तो अमेरिका इंतजामिया ने उस वक्त फैसला किया था कि अब हम कहीं जंग हार तो नहीं रहे। अब उसके बाद वो फैसले में उसके फौरन बाद एटॉमिक बम मारते हैं हिरोशिमा और नागासाकी पर। बिल्कुल यही तवक्को की जाती है कि 1 जून की रात को, आज 1 और 2 जून की रात को रशिया हो सकता है कि आज एटॉमिक बम का हमला कर दे। वो सिर्फ यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि रशियन इंतजामिया का बयान आया था कि इसका जवाब हम उन तमाम इत्तेहादियों को भी देंगे कि जो यूक्रेन के पीछे खड़ी हुई है, जो यूक्रेन के पीछे खड़ी हुई है। कुछ लोगों ने यह तबसरा किया कि यूरोप जानबूझ के रशिया को इस बारे में उकसा रहा है इस तरह के हमले कर कर कि कहीं यहां पर एटॉमिक जंग का आगाज ना हो जाए और देखते ही देखते ये जंग इस शिद्दत इख्तियार ना कर जाए कि उसके बाद दुनिया खत्म हो जाए। और तीसरी आलमी जंग की बुनियाद रखी जा चुकी है। दूसरी तरफ आज ही के दिन 2 जून को जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूं, दोनों के दरमियान मुज़ाकरात भी हुए और मुज़ाकरात नाकाम हो गए। जो लोग प्यूतन के मिजाज को जानते हैं वो ये कहते हैं कि अब बात यहां नहीं रुकेगी, बल्कि प्यूतन बहुत खतरनाक हमला करेगा और यह हमला न सिर्फ यूक्रेन पर होगा, बल्कि यूरोपीय ममालिक पर भी हो सकता है, अमेरिका पर भी हो सकता है। इस सूरत में क्या इंडिया खामोश रहेगा? इंडिया किसकी तरफ जाएगा? लोग ये देख रहे हैं कि कौन इस वक्त किस मुल्क की तरफ जाएगा और जंग किस तरफ जाएगी। अगर इंडिया इस सारे मामलात के अंदर कूदता है और अगर वो रशिया की तरफ जाता है तो क्या वो अमेरिका से अपनी दुश्मनी को अफोर्ड कर सकता है? वो अमेरिका से अपनी दुश्मनी को अफोर्ड ही नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने एक तरफ चीन के साथ झगड़ा मोल लिया हुआ है। अमेरिका के एक फोन पर जो पाकिस्तान के साथ जंग बंदी के लिए तैयार हो सकता है, जो पैरों में गिर कर माफिया मांग सकता है, वो इंडिया किस तरीके से अमेरिका के खिलाफ जा सकता है? मुमकिनात में से नहीं है। और अगर वो रूस की तरफ भी नहीं जाता तो क्या रूस उसे बाद में वो सपोर्ट करेगा जो उसने उसको की थी? और रूस ने इस बात का अमली मुजाहरा देखा जब पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई, तो रूस वाज़े तौर पर पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, इंडिया के साथ खड़ा नहीं रहा। जंग के बादल पूरी दुनिया के अंदर फैल रहे हैं और जिस तेज़ी के साथ ये फैल रहे हैं उस तेज़ी के साथ ये कही जा रही है कि अगर बातचीत के साथ अगर तय नहीं हो सकी, मुज़ाकरात की मेज़ पर अगर मामला तय नहीं हुए, तो हो सकता है कि ये साल इंसानों के लिए इस दुनिया के अंदर आखिरी साल हो। क्या बातें बन जाएगी या नहीं होगी? इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, खतरे की घंटियाँ बज चुकी हैं और आइंदा दिनों के 24 घंटे से लेकर 1 महीना बहुत अहम है कि जब ऐसे हाथ मंजर पर आ सकते हैं कि जो देखते ही देखते सबको लपेट कर रख देंगे। जो एटम बम रूस के पास है उसकी सलाहियत पाकिस्तान और इंडिया के बमों से 5 गुना ज़्यादा है। अगर पाकिस्तान का एक बम यहाँ पर 10 लाख लोगों के लिए हमलावर हो सकता है और इंडिया का एक बम 7 लाख लोगों के लिए हो सकता है, तो इन दोनों की मिलाकर ताकत इस वक्त रूस के पास मौजूद है। अगर रूस यूक्रेन पर इस तरह की बम्बार्टमेंट करता है तो क्या दूसरी तरफ से नेटो इस पर खामोश रह सकता है? और अगर रूस इस सिलसिले को आगे बढ़ाकर नेटो तक लेकर जाता है तो क्या नेटो इस जंग में नहीं कूदेगा? और अगर कूदता है तो बात की मंजरकशी क्या होगी? ये बात अब तय है कि रूस अब किसी सालिस की बात नहीं मानेगा। रूस जब तक एक बड़े हमले की तरफ नहीं जाएगा ये मामला हल नहीं होगा। और वो बड़ा हमला क्या एटम बम की सूरत में होगा या नहीं होगा, ये वो बहस है जो इस वक्त दुनिया भर के अंदर चल रही है। हम आपको लम्हा ब लम्हा इस सारी सूरत हाल से आगाह करते रहेंगे और हम आपको बताते रहेंगे कि इस वक्त कहाँ क्या हो रहा है। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा दीजिए। अल्लाह ने के पास।